I am Shreyas Bandyopadhyay of DAV Public School, CCL Girini. Today's topic is Nazism, the rise of Hitler. It is a chapter of political science of class 9 and is a part of SST. नाजीबाद हिटलर का उदय. We know that Hitler was the ruler of Germany, and Germany played a very vital role in the Second World War. And during the Second World War, Germany's extended army power, military power, enhanced in such a way that the army of Hitler almost captured the major part of Europe. यूरोप का ज़्यादा से ज़्यादा अंश लिए जर्मनी का आर्मी लोग दखल कर लिए थे. और इसमें हम लोग देखें कि वर्ल्ड का एक आदमी को एक एहसास हो गया था, मेनली लीडर्स लोग को, कि हिटलर का लीडरशिप नहीं, जर्मनी इस कदर पर पहुंच सकता है कि वो यूरोप को, पूरा यूरोप को दखल कर सकता है. तो ये बात है कि नाजिज्म है क्या और ये कैसे जर्मनी में, इटाली में इसका डेवलपमेंट हुआ है. इफ यू गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ नाजिज्म, नाजिज्म का डेफिनेशन अगर चाहते हैं हम लोग देख सकते हैं कि नाजिज्म इज वन टाइप ऑफ पॉलिटिकल आइडिया. नाजिज्म वन पॉलिटिकल आइडिया where a particular, according to Nazism, if we come to the definition of Nazism, we have seen that it's a political notion, or it is a, we can say it is a political system where a particular ruler influence that system in such a way that he is offered a particular position in the state, and the ideas which he is giving is totally maintained by the people of that country, and it is sometimes one type of, we can say that, influence, philosophical influence, which grab the mind of the people and guide the people in a particular way. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बाद हम लोग देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद जो हुआ तो हम लोग जानते हैं. तो अगर इसका नाजिज्म का शुरुआत हम ढूंढेंगे तो हम लोग को थोड़ा आगे देख जाना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बाद जर्मनी का पोजीशन बहुत ही खराब था. जर्मनी बहुत दबाव में थे और इसमें हम लोग देखें कि किंग जो थे जर्मनी का, वो देश को ऐसे, जो रूलर थे वैसे छोड़ के भाग गए, एंड ही लेफ्ट द कंट्री. and he left the country in such a situation
where Germany required reformation. And we have seen that after the leaving of the king in Germany, there was a Vienna Pact, called it the Vienna Pact, and in that Vienna Pact, Germany has to accept many humiliating policies or humiliating agreements, and Germany had to face a bulk of, we can say that, compensation, where the economy of Germany became more bad or weak, we can say. It almost came at the verge of ruin, and it was very difficult for the Germany to recover from that position. जर्मनी का अर्थनीति का हालत बहुत ही खराब हो गया था और जर्मनी को उससे उभारना था। जर्मनी का पीपल डिमोरलाइज हो गए थे। ये लोग सोचे थे कि कैसे इससे उभर के आए। मनी का वैल्यू बहुत गिर गया था। कुछ जगह हम लोग को ऐसा उस टाइम का पिक्चर देखने में मिला कि जिससे पता चलता है कि पीपल यूज्ड टू कैरी मनी इन देयर बैग्स फॉर बाइंग थिंग्स इन द मार्केट। फूड का कमी हो गया था, फूड वाज शॉर्टेज एंड the people who are working in a good position, they had to deteriorate their position, they had to come down as a general labor. People साधारण श्रमिक जैसे बनने लगे। काम का कमी, पैसा का कमी, फूड का कमी जर्मनी को एक ऐसा स्तर पर ले गए थे जिससे जर्मनी को उभरने के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन चाहिए था। तो वियना पैक्ट से जर्मनी को, हम पहले बोले, ह्यूमिलेटिंग एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ा और ये ह्यूमिलेटिंग एग्रीमेंट्स जर्मनी का इकोनॉमी को डिप्लोरेबल कर दिए थे और धीरे धीरे जर्मनी को उससे उभारना था जिसके लिए उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सो दे वांटेड ए वेरी साउंड इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसी should be made by the government so that they can come out of it. People can get requirements in the society, they can be involved in their jobs, in their business, and the acceptance of this bad situation was a really pathetic for the people of Germany. इसमें एक बड़ा नेता और अच्छा देश का कर्णधार और स्टेट्समैन का जरूरत था जो देश को आगे लेके जाएगा। एंड दैट सिचुएशन केम एंड देन वी हैव सीन द entrance of Hitler as a emancipator, you can say, as a game changer, as a policy maker, as a ruler of the Germany. He assured the people of Germany that he can
drive out Germany from the bad position to a powerful country and to a progressed country. He gave some policies. His speeches were so attractive that people of Germany started believing that they can come out of that critical situation by the help of Hitler. Hitler was in army in the beginning of his life, and after that he formed a party called the Socialist Workers Socialist Party, and from that position he contested elections time to time, but he was not getting success. Ultimately, a red letter D came for Hitler when he became the Chancellor of Germany. हिटलर चांसलर बनने का बाद हिटलर जो जर्मनी को लिए जो चीज करेंगे बोल के सोचे थे, चांसलर होने के बाद हिटलर को लगा कि मेरा सपना अभी सच होगा. He used to give lectures in front of the people. People get attracted to his lectures and they started dreaming that Germany will come out of this critical situation and one day Germany will be a powerful country in this world. From that bottom position, Germany will come to the top position. That dream, that hope came in the minds of the people of Germany because Hitler told them that Germany is going to be more powerful than any country of the world. And he used the sentiments of the German people. And slowly we have seen that Hitler came to the position and his workers' party started working, and when he came to the position, he converted the norms of the workers' party into a party that is called Nazi Party. And Hitler's party has been considered as a Nazi party, and from that period, Nazism came in Germany, and Hitler started to work as a reformer in the German society. On the other hand, we have seen in Italy also Mussolini were also started using the fascism, and Mussolini also one of the follower of Hitler's idea. So now Hitler as a chancellor started working, and he started reforming, he started making a new strong army for the Germany, and also for the country, because Germany became weak after the Treaty of Vienna. So what the loss the people of Germany faced during the Treaty of Vienna, Hitler gave them assuration that we will come out of it and Germany will be a strong country one day. And slowly people of Germany, they
started believing and they started working on the advice of Hitler. And this is the key words of Hitler's rise, हिटलर का उदय। हम लोग देखें कि हिटलर समाज को सुधारने के लिए बहुत सारा नियम बनाए थे। He not only made the political policies, he also prepared many policies which can be implemented in the society, which can be implemented for the businessman, for the youth of the German youths, for the women also. He gave some guidelines, and one thing we have seen that when he started reforming the society as a reformer, he mainly depended on the people who were considered as pure Germans. Because at the time, in every society, whether in Asia and Europe, we know that in that society, the people of other country also stay, also live there, and they get a very stronghold in the society. Like this, also in German society, there is a bulk of people who were called Jews. They were a lot of in numbers, and there are Indians origins peoples are also there. There are blacks are also there, and among these people, Hitler started depending on the pure Germans also. हम लोग को किताब में यही वर्ड दिया है कि नॉर्डिक आर्यंस, यही वर्ड हिटलर यूज करके नॉर्डिक आर्यंस ये देश के लिए सही सिटीजन है और बाकी सबको देश में रहने का अधिकार नहीं है। हम लोग बाद में वो ज्यूस का साथ हिटलर का क्या पॉलिसी था, हाउ ही स्टार्टेड ड्राइविंग आउट द ज्यूस एंड किलिंग द ज्यूस, दैट डिस्कशन विल कम later on. बट सबसे पहले कि हिटलर यही कि वियना पैक्ट में जर्मनी का जितना क्षति हुआ था, जितना लॉस हुआ था, उससे उभर के आने के लिए जो पॉलिसी बनाना था वो बना दिए थे। और सबसे बड़ा जर्मन पीपल को विश्वास में वो आ गए थे कि ये आदमी कुछ कर सकता है, लेट अस फॉलो हिम, व्हाटएवर ही सेड वी मस्ट अडॉप्ट हिज पॉलिसी। And after forming the Nazi party, when he got the support of the people, being the Chancellor of Germany, Hitler became the dictator. One ruler who will dictate the country, that is called the dictator. और आज भी हम लोग जानते हैं, कहीं भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ने जाते हैं, अगर डिक्टेटर का बात आता है सबसे पहले हिटलर का बात आता है। आज भी हिटलर का वो किताब जो मेन कैंप अगर हम लोग पढ़ते हैं उसमें यही झलक देखने में मिलता है कि एक डिक्टेटर कैसे हो सकता है, वो कितना दूर तक उसको पावर को यूज कर सकता है। हिटलर जैसे डिक्टेटर अभी तक दुनिया का इतिहास में नहीं, और कभी भी ये जब डिक्टेटरशिप में जब हम लोग बात करते हैं, बिकॉज डिक्टेटरशिप इज ऑपोजिट टू डेमोक्रेसी। अगर हम लोग लोकतंत्र में हैं तो डिक्टेटरशिप उसका एकदम ऑपोजिट है। लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप का कोई जगह नहीं है, बिकॉज इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। Dictator is a government which is ruled by only a dictator.
And whatever he is saying, that is the rule. What the people are demanding, that is not the rule. So हिटलर को परिचय हम लोग इतिहास में, in the history of the world as a dictator, and he showed how much power a dictator can use in the political context in the country. So सबसे पहले हिटलर डिक्टेटर होने के बाद एक कोशिश किए कि अपना मिलिट्री पावर को कैसे बढ़ाया जाए. I know the military powers are in mainly three wings: army, navy and air force. तीनों क्षेत्र में ये अपना पावर को बढ़ाने लगे और धीरे धीरे जर्मन में भी तो क्वालिटी था ही, देशभक्ति भी बहुत था, देश प्रेम भी बहुत था. तो ये लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे. और आज भी हम लोग ये बात विश्वास करते हैं कि दुनिया का कोई भी देश प्रधान ये बात विश्वास करता है, अगर जमीन पर कोई सबसे बड़ा ताकतवर है तो जर्मन है. हम लोग बोलते हैं आर्मी, जमीन पर अगर लड़ने का सबसे ज्यादा ताकतवर लड़ने का कोई देश का आर्मी होगा तो जर्मन होगा. आकाश पर लड़ने का कोई ताकतवर आर्मी होगा तो वो अमेरिका का होगा. और जल पानी में लड़ने का ताकतवर कोई कंट्री होगा तो वो ग्रेट ब्रिटेन के इंग्लैंड का होगा. ये कहावत है. तो ये जगह पर पहुंचने के लिए हिटलर को बहुत साउंड पॉलिसीज एंड लेना पड़ा, जिससे उसका आर्मी आज भी वर्ल्ड में नाम दिया जाता है कि इट इज लाइक द जर्मन आर्मी. जर्मन आर्मी जैसे नहीं, तो कंपैरिजन में आता है लाइक एडजेक्टिव. इसलिए हम लोग हिटलर चांसलर होने के बाद इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन किए, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे हो सकता है उसके बारे में देखिए, और समाज को सुधारने के लिए भी पॉलिसी लिए. और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग देखें कि जो नाजी पार्टी वो बनाए थे और जो डिक्टेटरशिप वो बने थे, तो सबको उसको फॉलो करना था. उसको फॉलो करना छोड़ के और कोई रास्ता नहीं था. जो जर्मन का आर्मी लोग ज्यादा से ज्यादा वही किए थे. और ये जो पार्टी का बहुत सारा कमिटी बनाए थे, बहुत सारा ग्रुप बनाए थे, एजेंसी बनाए थे, जो धीरे धीरे पूरा समाज को जो डिक्टेटरशिप का एज में अगर कोई भी राजनीतिक नीति, पॉलिटिकल ओपिनियन बना लेते हैं समाज में, वो डिक्टेटरशिप, हिटलर का डिक्टेटरशिप उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे एजेंसी बनाए थे. गेस्टापो एक ऐसा एक खुफिया तंत्र बनाए थे. गेस्टापो ऐसा एक ग्रुप बनाए थे पुलिस का, जो किसी का घर का अंदर जाके भी खबर लेता है. क्या ये लोग तो हिटलर का इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे हैं, हिटलर का विरोध में तो काम नहीं कर रहे हैं. तो इस तरह से हिटलर एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसे मजबूत किए कि उसको डिक्टेटरशिप फुल प्रूफ हो और उसका एगेंस्ट में कोई खड़ा होने का साहस न करे. और जो पीपल जो अपोजिशन पार्टी तो हर कंट्री में रहता है, ऐसा ये तो कभी नहीं हो सकता कि जो रूल कर रहा है कोई भी देश में सब उसका वो बोली बोलेगा. जरूर उसको विरोध करने का स्वतंत्र आइडिया रखने का आदमी तो हर देश में होगा. और ये पॉलिटिक्स में हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री में भी देखें कि ये आदमी लोग को कभी रिवोल्यूशन का लीडर बनना पड़ा, कामयाबी मिला, कभी जिंदगी भर जेल में भी सड़ना पड़ा, कभी उसको हैंग भी, फांसी में भी चढ़ाया गया, कभी फाइन कोर्ट में खड़ा करके गोली मार दिया गया. अगर पॉजिटिव ऐसा होता है तो
वो देश का लीडर बनते हैं, नहीं होता है तो वो जेल में सड़ जाता है कि ऐसे मर जाता है कि मार दिया जाता है। सो पावर ऐसे कि जो पावर में है, पावर एक बार मिल जाने के बाद वो करप्टेड एस्पेक्ट उसको आ जाता है। ज्यादा पावर ज्यादा करप्शन, ज्यादा पावर यूज करना मतलब इसका पीछे हम लोग जाते हैं कि ये ज्यादा करप्शन जरूर इसके पीछे है और इसके लिए दबाव भी कि बहुत कड़ा होगा तब ये आज ये जगह पर पहुंच सके। हिटलर वही था, राइज ऑफ हिटलर, जर्मन पीपुल उसको इतना विश्वास किए थे, इतना फेवर किए थे। और ऐसा जगह पर पहुंचने के लिए हिटलर को मदद भी की थी और हिटलर का हर नीति कामयाब होने लगे और जर्मनी उसी रास्ते पर चलने लगे। एक बहुत गरीब परिवार से आए थे हिटलर, तो जानते वो बहुत संघर्ष करके जिंदगी में आए थे और चढ़ाव उतर देखे हैं। सो ही न्यू द स्टेप्स how to become a ruler of such a country, and what the people of German think, what the people of German want. He started to build his character in such a way that he can assure them that yes, here I am, I will do for you. धीरे धीरे एक का बाद एक कंट्री को जब वो अटैक करने लगे यूरोप में, तो हम लोग देखे कि हिटलर का जो नाजी आर्मी था, जर्मन आर्मी, उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा। We have seen in the attack of Poland, we have seen during the attack of France, and also Austria. और हिटलर इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस ये लोग मिलके हिटलर को और बहुत सा कंट्री था उसमें, ये लोग मिलके हिटलर को पॉलिसी को फेल करने के लिए बहुत सारा पॉलिसी लिए थे। हिटलर का वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर का जो पॉलिसी था उसको अगर ठीक से काम में ना आए, एंड टू फेल हिज पॉलिसी they took many decisions and they made some groups in the world political scenario so that Germany can come in the suppression, and Germany can feel that yes, he is not only one, the other oppositions are also there, they can also give a strong blow to you. Churchill, Roosevelt, बाद में हम लोग देखें कि रशिया भी, स्टालिन भी आए थे एक ग्रुप में कि ना हिटलर को रोकना है। और अब हम लोग जानते हैं कि जब हिटलर का आर्मी मॉस्को का आसपास पहुंच गए थे, पहुंचने वाले थे, तभी इसको धीरे धीरे ऐसा एक सिचुएशन बना कि इसको पीछे आने पड़ा। तो रशिया को अटैक करना हिटलर का लिए एक बड़ी भूल, ये भी बहुत जगह पर उसको क्रिटिसिज्म होता है कि लगभग इंग्लैंड का साथ जो इसका कॉन्फ्रंटेशन था, वहां से आर्मी हटाना और फिर रशिया में लेके आना और उसको लड़ाई में ढोक देना, और आर्मी को किस तरह से कुछ कम्युनिकेशन गैप था जिसमें रशियन अटैक में एक फ्रंट जर्मन पीपुल खुला छोड़ दिए थे, जिसमें
विरोधी पक्ष का जो आर्मी वो घुस गए थे और आखिर वही हिटलर का पराजय का कारण बना। एंड नाउ we have seen that the rise of Hitler in the Germany, according to the history, you can say that there was a vacant situation where the German people needed a very strong ruler, and Hitler gave that leadership as a dictator, and he slowly prepared the Germans in such a way that one day they can show their best and they can be the conqueror of Europe. Because Hitler's aim, one of the aim was to capture the whole Europe. That was his aim, and in that path he almost became successful. So up to Europe we have seen the position how the Hitler became powerful. So the Hitler's aim to capture the whole of Europe almost became successful. The German soldiers fought in such a way that they defeated many European countries. They controlled their government people, they made military base camp there, and ultimately in the verge of attacking the Russia, Hitler gone through different discussions. रशिया को अटैक करने का पहले हिटलर थोड़ा सा हड़बड़ी किए हम लोग बोल सकते हैं, और थोड़ा देखना चाहिए था, बिकॉज रशिया was a powerful country and the Red Army, the Russian army is called Red Army. Red Army was a powerful army at the time, and their defense tactics were also different. And they became aware of the technique of attacking of the German soldiers, because for a long time we have seen that the Russian ruler, his name was Stalin, Rudolf Stalin, he examined and he were aware of the techniques of the attacks of German army, strategy of war of Germans, and he believed that one day the situation will come when Russia may get threat from Germany. रशिया भी जर्मन का नजर में आ सकता है और जर्मनी रशिया अटैक करने का चांस ढूंढ रहा है, और अटैक करेंगे। ये पहले से स्टैलिन का एक फारसाइटेड ओपिनियन था और यही बाद में काम आया। तो स्टैलिन slowly started discussing with the other big leaders and started thinking that how to defend his own country from the attacks of the Germans. इसमें हम थोड़ा और एक बार नजर डालते हैं कि जर्मनी का जो पॉलिटिकल
जो पॉलिटिकल पार्टी नाजी, वो जर्मनी में जो अपना बेस बनाए थे, जर्मनी का पीपल उसको सपोर्ट किए और ऑलमोस्ट पीपल को जो सपोर्ट नहीं किए उसको भी टोटल दबाव में रखे। इकोनॉमिक सिचुएशन में हम लोग देखें कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से उभर के आने के लिए भी ये लोग बहुत सारा पॉलिसी बनाए। फिर हम लोग अगर समाज के बारे में आते हैं, समाज का में सुधार के लिए जो पॉलिसी हिटलर लिए थे, उसमें सबसे अहम था कि ज्यूज जो जर्मन में रहते थे, the Indians, blacks, they are also the people of Germany at the time. They are born and brought up in Germany. But these people were not in favor of the development of German, and Hitler started discussing or started to tell that the Jews, though they were staying in Germany and they are a part of the people, but they are not at all in a position to think about the development of Germany. Rather, the Jews were more interested in making money, not making the country great, not making the country strong. They were not favoring the national interest of Germany. They are only thinking about their own interest, and at the time one comment was there, we read about it, that a Jew never becomes happy till he is not sitting on a bag which is full of money, because Jews were considered as the people of only getting the money, people of only accumulating the money and making money, and not at all interested or doing something for the interest of the Germany. Rather, they are considered as unwanted, and they are almost considered as the enemy of Germany. Enemy of the Germans. So this type of notion, this type of idea, Hitler repeatedly delivered in his speeches. हिटलर बहुत सारा रैली किए थे, नाजी का बहुत बड़ा बड़ा रैली होता था देश में, मीटिंग होता था, रैली होता था, डेमोन्स्ट्रेशन होता था, उसमें बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया जाता था, बहुत बड़ा बड़ा फ्लैग बनाया जाता था, जिसमें स्वास्तिक नाजी का जो चिन्ह था, स्वास्तिक चिन्ह का फ्लैग होता था, उसको लहराया जाता था। और इतना डिसिप्लिन वैसे ये लोग परेड करते थे, जैसे दुनिया देखते थे कि ये लोग इतना पावरफुल है, इतना डिसिप्लिन है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये लोग का जर्मन नाजी पार्टी का जो मीटिंग होता था, डेमोन्स्ट्रेशन होता था, रैली होता था, वो इतना जबरदस्त होता था। उस तरह से रैली वर्ल्ड में कम ही आदमी देखे। आज भी वो रैली का पिक्चर हिस्ट्री बुक में बहुत यूट्यूब बहुत जगह पर वो दिखाया जाता था कि दीज आर द पीपल ऑफ जर्मन हु मेड लाइन्स, हु आर मेकिंग द पैरेड एंड हु आर ऑर्गेनाइज्ड रैलीज।
और वहां हिटलर एक मसीहा जैसे खड़ा होते थे और जो भाषण देते थे वो अपना शब्द करके बहुत घड़ी थे। वो इतना अच्छा बात बोलते थे, इतना अच्छा लेक्चर देते थे, इतना अच्छा हम बोले कि स्पीच देते थे कि आदमी उसमें ये हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे, आदमी उसमें विश्वास करने लगते थे कि यस दिस इज अ पर्सन हु कैन डू समथिंग फॉर अस। सो समाज में वो आदमी को यही बात फैला दिए थे जर्मन गवर्नमेंट, हिटलर का जर्मन गवर्नमेंट, कि ज्यूज देश का शत्रु है, दे आर द एनिमीज, ये ज्यूज हो, ब्लैक्स है, जो इंडियंस है, दे आर अनवांटेड। ये लोग को जर्मन समाज में समाज छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा। दे वर कॉल्ड अनवांटेड। और ये लोग जो नॉर्डिक आर्यन जर्मन है, जो प्योर जर्मन है, ये लोग का साथ ये लोग को मिक्स नहीं होना चाहिए। प्योर जर्मन में प्योर और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस लोग की जर्मन में रहेंगे और बाकी सब देश का बाहर चल जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो ये लोग देश को और खराब करेगा। हाँ, और इसीलिए समाज में एक यूथ आर्मी बनाए थे जर्मनी, यूथ आर्मी बनाए थे। उससे यंग जर्मन्स लोग को लेके एक ग्रुप बनाए थे हिटलर। यूथ जो प्योर जर्मन्स है वो लोग को लेके यूथ ग्रुप बनाए थे। जो जर्मन्स है, जो प्योर जर्मन्स है, ये लोग ये वो औरत लोग को वो ज्यूस से और ये जो अनवांटेड पीपल से अलग रहने बोले थे, और वो लोग को साथ शादी करने मना किए थे, वो लोग को साथ इन्वॉल्व होने मना किए थे। ओनली प्योर जर्मन्स वुमेन को, नॉर्डिक जर्मन वुमेन्स को बोले थे कि आप लोग समाज को सुधारिए, बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे नाजी आइडिया को धीरे धीरे बच्चा को दिमाग में घुसाना है, कैसे देश को समाज को सुधारना है, ये हिटलर अपना लेक्चर में देते थे, अपना स्पीचेस में बोलते थे। ही गाइडेड द रिफॉर्मर्स of the society, the teachers of the society, the women folk of the society, and youth of the society, that they should be guided in such a way. वो guideline दिए थे, and Hitler told that don't mix with the unwanted people and the gypsies, the Jews, the brown Indians, blacks. These are the people who were the unwanted elements in the German society. They should not mix with them. They were unwanted, and they should keep aloof from the rest of the original Germans. इसमें हम लोग एक चीज हम लोग और देखें कि ये जो अनवांटेड पीपल का एक ग्रुप बनाए थे हिटलर, टोल्ड दैट दे वर अनवांटेड, और इसके लिए इसको देश से भगाना, इसको खत्म करने के लिए एक पॉलिसी जर्मन गवर्नमेंट उस टाइम लिए थे, जिसको नाजी का सरकार उसको स्पेशल ट्रीटमेंट बोल के बताया। ये स्पेशल ट्रीटमेंट वही था जो ज्यूस को गैस चेंबर में घुसा मारा गया। इसको कभी टू किल और टू फिनिश ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया था।
ऐसे वर्ड यूज किया गया था जिससे बोला गया कि दे शुड गेट स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे होते थे कि द मिलिशिया और द गेस्टापो पीपल और द पुलिस पीपल ऑफ जर्मन गवर्नमेंट they used to keep the unwanted people aloof from the society. They used to take the Jews, the gypsies, the blacks out of the society, and they put them in a concentration camp. In a concentration camp in Auschwitz, there is a place called Auschwitz, and there was a great concentration camp. And in other places also we have found some concentration camps. And these people used to keep on in that concentration camp. ये concentration camp का पिक्चर अभी भी हम लोग को हिस्ट्री बुक में वीडियो में देखने आता है। जो अनवांटेड पीपल को जो गाड़ी से लेके कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचाया जाता था, जो ट्रेन से, जो कार से, जो तरीका से, वो भी अभी दुनिया का पास एक देखने का लायक चीज हो गया। एंड दिस अनवांटेड पीपल यूज्ड टू कीप इन कंसंट्रेशन कैंप एंड slowly they were getting the special treatment. That means that concentration camp में ये जो unwanted people को रखा जाता था और धीरे धीरे उसको concentration camp से निकल के bulk of people को special treatment दिया जाता था कि गैस चेम्बर में डाल दिया जाता था। एक रूम में उन लोगों को रखा जाता था, कुछ देर बोलते थे कि तुम लोग यहाँ आराम करो, नहाओ। इट वॉज लाइक ए बाथरूम, इट वॉज लाइक ए ड्राइंग रूम, यू पास योर टाइम हियर, ऐसे बोला जाता था। उसके बाद चारों तरफ बंद करके गैस खोल दिया जाता था। इस तरह से हिटलर का नाजी सरकार आज तक दुनिया का रिकॉर्ड जो है कि सबसे ज्यादा आदमी मारने का रिकॉर्ड हिटलर का आज तक बना हुआ है, बिकॉज ही किल्स लॉट ऑफ सो मेनी पीपल, द ज्यूज, द अनवांटेड पीपल, द जिप्सीज। इसको अभी भी रिकॉर्ड में एक नंबर बनाया था कि इतना आदमी कहीं कोई रूलर आज तक नहीं मारा। So this was a very pathetic situation, and at the time, due to the powerful leadership of Hitler, the people of Germany who were thinking it was bad, they had no say against the Hitler, against the Nazi government, and the other people of the world, they were seeing that Hitler is doing this, but the only remedy was to remove the Hitler from that position. So in the world situation, we have got the two groups, the central powers and the axis powers, and एक दो ग्रुप बना था जिसमें एक ग्रुप में ब्रिटेन, अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज थे, बाद में रशिया उसमें ज्वाइन किए, और दूसरा ग्रुप में जिसमें हिटलर थे उसमें जापान थे, इटाली थे और कुछ कंट्री ज्वाइन किए। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से जब लड़े, हिस्ट्री का पढ़ना में उसको हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध मानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड दैट बिकेम एंडेड इन द ईयर 1945 एंड दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ use of German's Nazi power, and Germany was going comfortably in the right path when they were attacking Poland, they were attacking France, and they were attacking Austria and other countries.
who surrendered to them. But the great mistake they made at the time of attacking Russia, because they never reviewed the situation in such a way कि रशिया अटैक हिटलर के लिए इतना भारी पड़ जाएगा हिटलर सोचे नहीं, पर जल्दबाजी किए हैं। उसका आर्मी थका हुआ था, आर्मी का रिसोर्सेस ठीक टाइम पर नहीं आ रहा था, लीडरशिप का कहीं कमी था। जो गोएबल्स थे और जो आर्मी चीफ थे, वो उस जो इंफॉर्मेशन वो मिला था उसका आधार पर वो लोग पॉलिसी बनाए थे। लेकिन वॉर का कुछ पॉलिसी होता है जिसमें कोई एक जो लड़ाई कर रहा है और एक तरफ उसको आर्मी को भी बचाना है, डिफेंड करना है, कोई दवाई कोई ऐसा नहीं खोल देना है कि दूसरा करती अचानक आके उसको अटैक कर दे। वही हुआ था कि जो इंग्लैंड का आर्मी था, ब्रिटिश आर्मी, उसको एक ओपनिंग मिल गया था कि आके वो जर्मन सोल्जर को अटैक कर दे विद द ग्रेट फोर्स ऑफ द बाय टेकिंग द अदर सोल्जर्स ऑफ अदर कंट्रीज। ये जो एक्सिस पावर का जो मौका मिल गया था, और रशिया अटैक हिटलर के लिए शुरू में पॉजिटिव था, लेकिन जब वो नियर अबाउट मॉस्को पहुंचने लगे तो हम लोग देखें कि बर्फबारी होने लगा, स्नोफॉल, and the weather was very harsh, and the German people were not accustomed with that particular type of weather. But the Russian people who were continuing war from their own land, they were accustomed with this situation, with this climate, so they fought bravely. And that is that before entering Moscow, the weather was not in favor of the Germans, but the weather was very comfortable for the Red Army of the Russians, and slowly they started breaking the barriers of the German people, and from that area, when the total Axis forces started demolishing the German army, and when they started going back, slowly these Russian soldiers captured Berlin. That was the end of the Hitler's invasion and Hitler's hope for capturing the whole of Europe. That dream became a dream that never came true. वो हिटलर का वो ड्रीम शुरू में जैसे सच होने दिखाई दे रहा था कि उस टाइम 45 में जब रशियन सोल्जर जब बर्लिन तक पहुंच गए और अदर्स आर्मीज ऑल्सो, तो हम लोग को इस वर्ल्ड पीपल सीन दैट yes, it was the defeat of the German bloc, and they were no more can do their best in this war. इसका बीच में जापान भी सरेंडर कर लिए थे. Japan also surrendered. Because Japan was a very great force which gave a very strong blow to the American government by attacking the Pearl Harbor. Pearl Harbor का लड़ाई हम लोग को सबको याद है. तो जो सबक ये लोग जापानीज पीपल सिखा दिए थे वो कभी नहीं भूले पीपल. लेकिन जब उसको एटम बम का थ्रेट आ गया तो नो दैट जापान को भी सरेंडर करना पड़ा. And also Indian revolutionaries got support from Japan, but after surrender of Japan, Indian Azad Hind Fauj also didn't get support and help. So slowly we have seen that the rise of Hitler का उदय, जर्मनी जो सिचुएशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वियना
पैक्ट का टाइम, उससे बहुत सुधार हुआ था। उसमें हिटलर एक जर्मनी को एक परिचय दिलाया कि ये जर्मन पीपल कैन शो देयर बेस्ट इन सम सिचुएशंस एंड दे gave birth to a ruler who made a policy for the country, and German people started showing their best, or mainly the military power to the people of the world, and slowly they were almost at the verge of capturing the major part of Europe. But the ultimate final goal was not scored, and they had to go back from the last war footing, and when they started going back they had to reach to their own capital, that is Berlin, and Germany was defeated. And after the Second World War, we know that Germany was divided into two blocks. That is, the western part of Germany was captured by America, and the eastern part of Germany was captured by Russia. So people who were going to Germany at the time, they were saying that East Germany was a communist bloc, and West Germany was a capitalist bloc. And in the middle of East and West Germany, there was an electrocuted wall, and no one can cross that wall. If anyone is trying to cross that wall, he has to face death. And Germany was the main, we can say, that vehicle. It ran on the road of the Second World War, and which was the main hero of that war, but ultimately his heroism was not mentioned. And the rise of the Hitler he came from a very poor family, but his military and पर्सनालिटी स्किल एंड पर्सनालिटी कल्ट वी कैन बेटर से, तो व्यक्तित्व से वो और उसका लीडरशिप से जर्मनी को एक दिशा दिखाए। लेकिन उसका जो जर्मन बेस्ट है वर्ल्ड में, ये अहम आखिर इसको भारी पड़ गया कि ठीक है, एक हम लोग बोलते हैं कि आत्मविश्वास होना अच्छा है, लेकिन आत्मविश्वास तभी काम पूरा कर सकता है जब मेरा पॉलिसी बहुत सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है, और वो काम करेगा ऐसी सिचुएशन पर। आदमी को थोड़ा साइकोलॉजिकली मूव करके तो हम लोग कुछ काम तो जरूर कर सकता है। अगर मेरा पॉलिसी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, अगर उसका पीछे बहुत सारा पॉजिटिव रीजन नहीं है, तो अल्टीमेटली वो कामयाब नहीं है। तो हिटलर वही कहते कि ही वाज गाइडेड बाय द साइकोलॉजिकल फोर्स ऑफ जर्मन पीपल, ही हैड कैपेसिटी, बट अल्टीमेटली somehow his policy failed, and that Germany saw the rise of a man called Hitler. He is still considered as a number one dictator in the history of the world. And this was the story, and it was the end of the rise of Hitler. At the same time, it was the end of the rule of Nazi Party in Germany. Thank you.